torque, turning effect of force. When you apply some force on a body and it starts to rotate, then the turning effect of force is called torque. It is a vector quantity whose SI unit is Newton meter. Whose SI unit is Newton meter. Suppose this is a pen and I am applying a force on it. ये घूम रहा है ना, so the turning effect of the force exerted by me is called torque. तो बच्चे, if this is the r vector and I am applying a force on it, this is the vector r and I am applying a force on it, so let's suppose the angle between the r and f to be theta. The angle between the r and f to be theta. So torque का first formula is vector r cross f. R is the position vector from origin to the force, tail of the force. ठीक है, r is the position vector of force. तो torque का first formula होता है r cross f. If we talk about the magnitude, then magnitude of torque is Rf sin theta. Let's suppose the R was making an angle phi with the x-axis. On the applying force, it rotates. It rotates like this and have angular displacement d phi. And have angular displacement d phi. ठीक है? This is theta, then the vertically opposite angle, this will also be theta. Let's drop a perpendicular on the force from the origin. This is the perpendicular on the force from the origin. This perpendicular is called lever arm. And it is D. If you focus on this triangle OAB, then in triangle OAB, if you apply the sin theta, then sin theta is D is the perpendicular on the force from the origin. D is the perpendicular on force from the origin. So from this triangle, sin theta is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse. That is D by R. So R sin theta can be replaced by D. So torque can be written as FD. In this, I have replaced R sin theta by D. तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? अगर हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे तो वेक्टर R क्रॉस F. R is the position vector. R need not to be perpendicular to force. R जो है वो एक्चुअली होगा, लेकिन D is always a perpendicular distance. So force into perpendicular distance. Force into perpendicular distance is also a formula of torque. Another formula of torque are torque. Yes, बच्चे. हाँ, FD. So torque is equal to I alpha. It is the formula in contrary with F is equal to ma. जैसे F ma के बराबर होता है, तो F की जगह रोटेशनल फोर्स कौन होता है? टॉर्क. I is the alternative of mass. यही फिजिकल सिग्निफिकेंस था. That physical moment of inertia plays same role in rotational motion as mass plays in translatory motion. और A is replaced by alpha. तो torque is equal to I alpha. इसका हमें प्रूफ भी करना है. नेक्स्ट हेडिंग हमारी यही होने वाली है. That the find the relation between torque and moment of inertia. F is equal to dp by dt भी होता है. तो टॉर्क इज इक्वल टू P का अल्टरनेटिव क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम. P is the linear momentum, L is the angular momentum. P is the linear momentum and L is the angular momentum. Same are the formula of angular momentum. Angular momentum के भी सेम फॉर्मूले हैं. अगर हम एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले की बात करें, L वेक्टर L इज इक्वल टू R क्रॉस P. वेक्टर L का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू RP साइन थीटा. L इज इक्वल टू PD.
अब P इज इक्वल टू एम वी से आप इसे कंपेयर कर दीजिए, P इज इक्वल टू एम वी से आप इसे कंपेयर कर दीजिए, तो P की जगह L आएगा, M की जगह I, V की जगह ओमेगा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, देयर इज वन मोर फॉर्मूला ऑफ L दैट इज इक्वल टू 2m डेल्टा A बाय डेल्टा T। इन दोनों के प्रूफ भी हमें करने हैं। दो प्रूफ ये हो गए, एक प्रूफ ये हो गया, और एक प्रूफ ये चार प्रूफ हमें करने हैं। Relation between torque and moment of inertia, relation between angular momentum and moment of inertia, relation between torque and angular momentum, relation between angular momentum and aerial velocity, delta A by delta T. Before moving to the derivations, what is the direction of torque? What is the direction of torque? हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट से देखिए, सपोज दिस इज अ बॉडी ऑफ रेडियस r and you are applying a force here, so torque is equal to how much? r क्रॉस s। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते थे? फर्स्ट वाले वेक्टर की तरफ r की तरफ राइट हैंड को, राइट हैंड स्क्रू रूल से r की तरफ हाथ इस तरीके से हाथ को रखना है, such that you have to place your right hand on the first vector। ठीक है, बट इन अरेंज इट इन सच अ वे दैट व्हेन यू रोटेट द फिंगर देन इट मस्ट रोटेट टुवर्ड द सेकंड वेक्टर। तो मैंने ऐसे रखना पड़ेगा, आर की तरफ आपका हाथ, एफ की तरफ मतलब फोर्स की तरफ फिंगर रोटेट कर रही है, यस, थंब का जा रहा है अंदर की तरफ। तो इन दिस केस टॉर्क इज एक्टिंग इनटू द बोर्ड, इन दिस केस टॉर्क इज एक्टिंग इनटू द बोर्ड। तो जिस तरफ टॉर्क लग रहा है उस तरफ बॉडी घूमती नहीं है। टॉर्क तो जस्ट ये बता रहा है कि बॉडी घूमेगी, लेकिन जिस तरफ टॉर्क लगता है उस तरफ बॉडी घूमती नहीं है। बॉडी उस तरफ रोटेट करते है जिस तरफ फिंगर घूम रही है। आर क्रॉस एफ में फिंगर ऐसे घूम रही है ना, तो ये बॉडी ऐसे घूमेगी। ड्यू टू द एक्सर्शन ऑफ द टॉर्क ये बॉडी आर क्रॉस एफ ऐसे घूमेगी जैसे फिंगर रोटेट कर रही है। ठीक है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालते थे, सेम सिमिलर मैनर में टॉर्क की डायरेक्शन निकलती है। Can a body moving in straight line may have angular momentum? अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो क्या उसके बाद एंगुलर मोमेंटम हो सकता है? हाँ, देखिए बच्चे, वही तो बता रहा हूं। देखिए बच्चे, दिस इज द पॉइंट P एंड सपोज दिस बॉडी इज ऑफ मास m इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? mv एंड इन द सेम डायरेक्शन जिस तरफ वेलोसिटी है। बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, r is the vector joining origin, r is the position vector, r is the position vector। ठीक है, r is the position vector। तो r वर्सेस p का एंगल कितना है? थीटा। l का फॉर्मूला क्या था? r क्रॉस p मैग्नीट्यूड rp साइन थीटा। ना तो r जीरो है, ना ही p जीरो है, ना ही साइन थीटा जीरो है। नथिंग इज जीरो, ऑल द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। बॉडी इज मूविंग इन दिस केस इन स्ट्रेट लाइन, बट नाइदर द r इज जीरो नॉर द p नॉर द थीटा, कुछ भी जीरो नहीं है। ठीक है, तो बॉडी इज हैविंग एंगुलर मोमेंटम इवन दो इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन।
लीनियर मोमेंटम वाला पी है बच्चे, सिंपल पी स्टैंड फॉर लीनियर मोमेंटम. Find torque acting on the body. Find torque acting on body. R is given to you 2I cap minus 3J cap plus 4K cap, and F is given to you minus I cap plus 2J cap minus K cap. टॉर्क कितना होता है बच्चे? वेक्टर आर कॉस वेक्टर है, हाँ -12 क्यों बच्चे? वेक्टर क्वांटिटी ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दिया आपने? डॉट प्रोडक्ट नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, डिटरमिनेंट से निकलेगा. आई कैप, जे कैप, के कैप, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. पहले वाले वेक्टर की वैल्यू 2 -3 4 -1 2 -1. पहले आई कैप इन दोनों में आ रहा था -3 इंटू -1 3 -4 इंटू 2 8 माइनस जे कैप इन दोनों में आ रहा है ना, 2 1 जा 2 -2 माइनस में -1 इंटू 4 4 -1 इंटू -4 प्लस के कैप 2 2 जा 4 -3 आ जाएगा -5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 प्लस के कैप. ये आ जाएगा -5 आई कैप minus 2 j cap plus k cap. This is the torque acting on the body whose position vector is r and is exerting the force this. डॉट प्रोडक्ट नहीं निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट वाले मेथड से निकालना है. एनीबॉडी एनी डाउट कैन आस्क. अब बच्चे यही होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क. मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क का क्या मतलब है बच्चे? अगर आप आर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मान ले, एंड एफ को मान ले एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है, तो टॉर्क कितना होगा? वेक्टर आर क्रॉस एफ आप निकाल दीजिए, आई कैप जे कैप के कैप एक्स वाई जेड एफ एक्स एफ वाई एफ जेड. टॉर्क कितना हो जाएगा? आई कैप जे कैप के कैप एक्स वाई जेड एफ एक्स एफ वाई एफ जेड. ठीक है, तो टॉर्क कितना आ जाएगा बच्चे? आई कैप इन दोनों को छोड़ दीजिए, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई माइनस जे कैप इन दोनों को छोड़ दिया, एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स प्लस के कैप इन दोनों को छोड़ दिया, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स. यू कैन राइट इट एज वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, आई कैप माइनस को अंदर भेज दीजिए, प्लस जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, जे कैप प्लस एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स के कैप. ये आ जाएगा बच्चे. तो दिस इज द टॉर्क इन एक्स एक्सिस, दिस इज द टॉर्क इन वाई एक्सिस एंड दिस इज द टॉर्क इन जेड एक्सिस. दीज आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क. तो बच्चे यहां से टॉर्क इन एक्स एक्सिस कितना आ जाएगा? वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई. ठीक है, टॉर्क इन वाई एक्सिस कितना आ जाएगा? जेड एफ वाई जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, एंड टॉर्क इन जेड एक्सिस आ जाएगा एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स. दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ
torque. These are the rectangular components of torque. हाँ बच्चे, जेड एफ एक्स, यही तो लिखा है जेड एफ एक्स मतलब एक्स, ये एक्स ये गलती से लिख गया। देखिए अब जो फॉर्मूले में प्रूफ करें तो फॉर्मूले प्रूफ करते हैं। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए बच्चे, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Let us assume that this lamina is rotating about the central axis. Let us assume that this lamina is rotating about the central axis with angular acceleration alpha. With angular acceleration alpha. And this lamina is comprised of n particles of masses m1, m2, m3, mn, having perpendicular distance from the axis of rotation r as r1, r2, r3, rn. तो I कितना होगा बच्चे? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर डॉट 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 mn rn स्क्वायर, यही होगा I। m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर, लेट इट टू बी इक्वेशन 1। नाउ नेट टॉर्क कितना होगा? टॉर्क ऑन फर्स्ट बॉडी प्लस टॉर्क ऑन सेकंड बॉडी, टॉर्क इन थर्ड बॉडी, टॉर्क ऑन द nth बॉडी। ठीक है, टॉर्क कितना होता है बच्चे? अभी हमने पढ़ा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हियर r1 r2 r3 आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसे हम लिख सकते हैं r1 f1 प्लस r2 f2 प्लस r3 f3 अप टू rn fn। f इजिकल टू क्या होता है बच्चे? m में m1 a1 m2 a2 m3 a3 mn an। ठीक है, आपने क्या पुट कर दिया? f इजिकल टू m में a इजिकल टू r अल्फा। ठीक है, आप अल्फा कॉमन निकाल दीजिए, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर, और यही हमारा क्या होता है? I। तो टॉर्क इजिकल टू क्या आ गया? I अल्फा। टॉर्क इजिकल टू क्या आ गया बच्चे? I अल्फा।
रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन, भाई ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, here अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब वी वांट टू प्रूव L इज इक्वल टू I ओमेगा. Everything is same, but in this the lamina is rotating with angular speed omega. ठीक है, तो अगेन I will be same, m1 r1 square plus m2 r2 square up to mn rn square. L इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का, फर्स्ट पार्टिकल का, सेकंड पार्टिकल अप टू nth पार्टिकल का. ठीक है, r1 r2 r3 आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो L का फॉर्मूला क्या था, r क्रॉस p, rp L एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब L इज इक्वल टू I ओमेगा हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो बच्चे L कितना हो जाएगा, L1 L2 L3 Ln. L1 हो जाएगा R1 P1 R2 P2 Rn Pn. साइन 0 चल रहा था, साइन 90 चल रहा है समय. R और P आपस में क्या चल रहे हैं, परपेंडिकुलर है ना. P हो गया mv, V इज इक्वल टू R ओमेगा, R1 ओमेगा Rn Mn Rn ओमेगा. ओमेगा कॉमन m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर. तो ये आ जाएगा L इज इक्वल टू I ओमेगा. L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, I ओमेगा. बच्चे एक ही वेलोसिटी, ये पूरी बॉडी, इफ द एंटायर बॉडी इज रोटेटिंग विद द सेम एक्सिस, तो ये पूरी बॉडी का गोल घूमने का स्पीड सेम है ना. ओमेगा क्या था, गोल घूमने का स्पीड है ना. तो चाहे जितने मर्जी पार्टिकल थे इस बॉडी, इस पे, इसके ऊपर, सब सारे पार्टिकल का ओमेगा क्या रहेगा, सेम. रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है, ये होता है बच्चे के, रेडियस ऑफ गायरेशन. दिस इज के. भैया व्हाट इज दिस, सपोज लेट अस कंसीडर कि दिस इज अ लैमिना, लेट इट टू बी यूनिफॉर्म लैमिना. यूनिफॉर्म लैमिना इज अ लैमिना विच कंप्राइज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ सेम मास. इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, बट ऑल द पार्टिकल्स आर ऑफ सेम मास. ठीक है, having perpendicular distance from the axis of rotation as r1 r2 rn. This is the axis of rotation. So I know that I of the lamina, I of lamina कितना होगा बच्चे, mr1 का स्क्वायर mr2 का स्क्वायर अप टू mrn का स्क्वायर, अप टू mrn का स्क्वायर. यही होगा बच्चे लैमिना का I.
यस, सेंटर ऑफ मास में कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं ना, कहीं भी मान सकते हैं, उस पे आ रहा हूं मैं धीरे धीरे. These are uniform lamina. Uniform lamina has all the particles of same mass. तो आई ऑफ लैमिना होगा mr1 का स्क्वायर, mr2 का स्क्वायर, mrn का स्क्वायर. अब जैसे बच्चे ने बात करी कि लेट सपोज दिस अ पॉइंट G where whole mass of the body is concentrated. At this point G, the entire mass of the body is concentrated. ठीक है, एंटायर मास ऑफ लैमिना कितना हो जाएगा? नाउ m क्या है? टोटल मास ऑफ लैमिना. टोटल मास ऑफ लैमिना. ठीक है, तो ये क्या होगा? मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स. मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल. तो आप यहां पर ये मान लीजिए कि दिस इज एट पॉइंट जी एंटायर मास ऑफ लैमिना इज कंसंट्रेटेड एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस इज k. दिस k इज रेडियस ऑफ गायरेशन. तो आई ऑफ पॉइंट कितना आ जाएगा? इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? एम के स्क्वायर. एम आर स्क्वायर होता है ना, पॉइंट पे मास है m, डिस्टेंस है k, यानी कि स्मॉल m इंटू एन इंटू के स्क्वायर. अगर इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो जाए, अगर जो इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो जाए, तो इस k को रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं. मतलब आई ऑफ पॉइंट बराबर होना चाहिए आई ऑफ लैमिना के. पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? एम एन के स्क्वायर. लैमिना का कितना था? एम r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर अप टू rn का स्क्वायर. के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर अप टू rn का स्क्वायर बाय n. ठीक है, तो यहां से k का वैल्यू कितना आ गया? के स्क्वायर का वैल्यू i अपॉन में m. हम ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज करते हैं, i अपॉन में m. तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है बच्चे? रेडियस ऑफ गायरेशन इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट from axis of rotation, from axis of rotation where a whole mass of body is supposed to be concentrated, is supposed to be concentrated, then क्या होना चाहिए बच्चे? उस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए. देन moment of inertia of lamina must be same as that of point, must be same as that of point. अब इस टर्म का फायदा क्या हुआ? इस टर्म से बेसिकली साइंटिस्टों ने क्या कहा कि एनी बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी इज एम के स्क्वायर. जैसे हमने रिंग का पढ़ा था, रिंग का कितना होता है? एम आर स्क्वायर. तो यहां से के स्क्वायर किसके बराबर हो गया? अगर मैं के स्क्वायर की वैल्यू लिखूं तो आर स्क्वायर के बराबर हो गया. ठीक है, अगर मैं डिस्क का पढ़ता हूं सेंट्रल एक्सिस के लॉन्ग, एम आर स्क्वायर बाय 2 था ना, तो ये इन्होंने कहा कि डिस्क का भी एम के स्क्वायर ही मानना है, लेकिन के स्क्वायर की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाएगी? आर स्क्वायर बाय 2. अगर आप सॉलिड स्फीयर का देखो, सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला कितना होता है? 2/5 एम आर स्क्वायर पढ़ा था हमने. सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? 2/5 एम आर स्क्वायर. तो m को फॉर कंपेयर आप कितना लेना है? m के स्क्वायर. तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/5 आर स्क्वायर. बेसिकली के स्क्वायर को पढ़ के हमने ये पढ़ा, बेसिकली हम या तो ये फॉर्मूला यूज करें 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/3 एम आर स्क्वायर होल स्क्वायर का, ये तो या तो आई की वैल्यू ये यूज करें, या आई का वैल्यू एम के स्क्वायर यूज करें और उसमें के स्क्वायर की वैल्यू डाल दे. बात एक ही है. तो रेडियस ऑफ गायरेशन का कुछ ज्यादा एडवांटेज नहीं निकला, क्योंकि आई का फॉर्मूला क्या होता है? 2/5 एम आर स्क्वायर सॉलिड स्क्वायर का. तो या तो मैं डायरेक्ट आई का फॉर्मूला 2/5 एम आर स्क्वायर लगा दूं सॉलिड स्क्वायर में, कोई दिक्कत नहीं है, या आप एम के स्क्वायर लगाओ और उसमें के स्क्वायर की वैल्यू क्या डाल दो? 2/5 एम आर स्क्वायर. तो बात तो वही आएगी. ठीक है, तो दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन, दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन. बस एक यूनिफॉर्मिटी आ गई कि हम किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर पुट कर सकते हैं.
ऑल दो में के का वैल्यू अलग अलग होगा डिपेंडिंग ऑन द बॉडी. Write down law of conservation of angular momentum. Okay. Law of conservation of angular momentum. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो देखिए बच्चे, लॉ इट इज जस्ट लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉज ऑफ मोशन में क्या कहता था? दैट इफ अ बॉडी इन that if no external force is acting on the system then the momentum of the system is conserved. यही था. The same is applicable in rotational motion, that if no external torque is acting then the angular momentum is conserved. वहां पर फोर्स था तो मोमेंटम कंजर्व था, यहां पर टॉर्क है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है. क्या करते थे बच्चे? इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, if no external torque is acting on system, then एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व. ठीक है. तो ये टॉर्क होता है आर क्रॉस है आर, इसका हम प्रूफ करते हैं. टॉर्क होता है आर क्रॉस है बाय सेकेंड लॉ. फोर्स होता है डीपी बाई डी टी, इट विल बिकम डी आर क्रॉस पी बाई डी टी. अभी हमने पढ़ा एल होता है आर क्रॉस पी, इट विल बिकम डी एल बाई डी टी. This is a relation between torque and angular momentum. This is a relation between torque and angular momentum. अब इसको यूज करके, इस रिलेशन को यूज करके हम ये बात प्रूफ कर सकते हैं. देखिए, टॉर्क हमने प्रूफ किया डीएल बाय डी. टॉर्क हमने प्रूफ किया डीएल बाय डी. नाउ इफ टॉर्क हमने प्रूफ किया डीएल बाय डी, नाउ इफ टॉर्क इज जीरो, एग्जाम्पल जीरो इज इक्वल टू डीएल बाई डी. किसी का भी डेरिवेटिव कब जीरो होता है? जब वो टर्म क्या हो? कांस्टेंट. मतलब एल क्या होगा यहां पर? कांस्टेंट. ओनली कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है ना, तो यानी कि आई ओमेगा क्या हो गया? कांस्टेंट. दैट दिस एम्प्लाइज आई वन ओमेगा वन किसके इक्वल होगा? आई टू ओमेगा टू के.
I1 ओमेगा 1 किसके इक्वल होगा? I2 ओमेगा 2 के। हाँ भाई, let's do one question. What is effect on time period of day if Earth shrinks to half of its radius without changing mass? What will be the effect on time period of day if Earth shrinks to half of its radius without changing the mass? If Earth shrinks to half of its radius without changing the mass. हाँ, देखिए बच्चे, अभी हमने पढ़ा, देखो अगर अर्थ घूम रही है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रही, अर्थ पर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, और अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, मतलब I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 के बराबर होगा। अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर, अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर, तो इसका I कितना होगा? 2/5 mr²। ओमेगा टाइम पीरियड कितना होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 2 पाई बाय टाइम पीरियड। नाउ व्हाट इज हैपनिंग दैट द रेडियस ऑफ अर्थ हैज बिकम हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ हैज बिकम हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू into 2 pi by t2, ठीक है। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट t2 is equal to t1 by 4, that is equal to, अभी अर्थ का टाइम पीरियड लगभग कितना है? 24 आवर्स, 24 by 4 that is equal to 6 आवर्स। तो अर्थ का टाइम पीरियड केवल 6 घंटे बचेगा।